بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے، اسے بالکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں انہیں بشارت دے دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے۔ اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے؟ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لے کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور ہم آخر کار روئے زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کاف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم کر دے، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لیے پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہ میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کسے زیادہ معلوم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے واقعات بالکل سچے سچے بتا رہے ہیں۔ یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا اس وقت جب یہ سب یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے کہ اس طرح ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں، آخر یہ لوگ ان خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف الزام لگائے؟ اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سرپرست نہ پاؤ گے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں، اور ہم انہیں داہنے بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں، اور ان کا کتا ڈیبڑی پر دونوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت پر مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ 1 دن یا اس کا ایک حصہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے۔ اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے، اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے، اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی اندازے ہوں گے۔ اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कह दीजिए कि खुदा इनकी तादाद को बेहतर जानता है और चंद अफराद के अलावा कोई नहीं जानता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इनसे जाहिरी गुफ्तगू के अलावा वाकईन कोई बहस ना करें और इनके बारे में किसी से दरियाफ्त भी ना करें, और किसी शय के लिए ये ना कहें कि मैं ये काम कल करने वाला हूं, मगर जब तक खुदा ना चाहे, और भूल जाएं तो खुदा को याद करें और ये कहें कि अनकरीब मेरा खुदा मुझे वाकईत से करीब तर अम्र की हिदायत कर देगा। और ये लोग अपने गार में 300 बरस रहे और इस पर 9 दिन का इजाफा भी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह इनकी मुद्दत क़याम से ज्यादा बाखबर है, उसी के लिए आसमान और जमीन का सारा गैब है, और उसकी समात और बसारत का क्या कहना, उन लोगों के लिए उसके अलावा कोई सरपरस्त नहीं है और न वो किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। और जो कुछ किताब परवरदिगार से वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक पहुंचाया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इसी की तिलावत करें कि कोई उसके कलिमात को बदलने वाला नहीं है और उसको छोड़कर कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। और अपने नफ्स को इन लोगों के साथ सब्र पर आमादा करो जो सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की मर्जी के तलबगार हैं, और खबरदार तुम्हारी निगाहें इनकी तरफ से फिर न जाएं कि जिंदगानी दुनिया की जीनत के तलबगार बन जाओ, और हरगिज उसकी अतात ना करना जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से महरूम कर दिया है और वो अपने ख्वाहिशात का पैरोकार है और उसका काम सरासर ज्यादती करना है। और कह दो कि हक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। अब जिसका जी चाहे ईमान ले आए और जिसका जी चाहे काफिर हो जाए। हमने यकीनन काफिरीन के लिए उस आग का इंतजाम कर दिया है जिसके पर्दे चारों तरफ से घेरे होंगे, और वो फरियाद भी करेंगे तो पिघले हुए तांबे की तरह कि खौलते हुए पानी से इनकी फरियाद रसी की जाए जो चेहरों को भून डालेगा। ये बदतरीन मशरूब है और जहन्नम बदतरीन ठिकाना है। यकीनन जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमाल किए, हम इन लोगों के अज्र को जाया नहीं करते हैं जो अच्छे अमाल अंजाम देते हैं। इनके लिए वो दायमी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, इन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और ये बारीक और दबीज रेशम के सर्स लिबास में मलबूस और तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। यही इनके लिए बेहतरीन सवाब और हसीन तरीन मंजिल है। और इन कुफार के लिए इन 2 इंसानों की मिसाल बयान कर दीजिए जिनमें से एक के लिए हमने अंगूर के 2 बाग करार दिए और इन्हें खजूरों से घेर दिया और इनके दरमियान ज़राअत भी करार दे दी। फिर दोनों बागात ने खूब फल दिए और किसी तरह की कमी नहीं की, और हमने इनके दरमियान नहर भी जारी कर दी। और इसके पास फल भी थे तो इसने अपने गरीब साथी से बात करते हुए कहा कि मैं तुमसे माल के एतबार से बड़ा हुआ हूं और अफराद के एतबार से भी ज्यादा बाइज्जत हूं। वो इसी आलम में के अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा था, अपने बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मैं तो ख्याल नहीं करता हूं कि ये कभी तबाह भी हो सकता है, और मेरा गुमान भी नहीं है कि कभी कयामत कायम होगी, और फिर अगर मैं परवरदिगार की बारगाह में वापस भी गया तो इससे बेहतर मंजिल हासिल कर लूंगा। इसके साथी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तूने उसका इनकार किया है जिसने तुझे खाक से पैदा किया है, फिर नुत्फे से गुजारा है, फिर एक बाकायदा इंसान बना दिया है। लेकिन मेरा ईमान यह है कि अल्लाह मेरा रब है और मैं किसी को उसका शरीक नहीं बना सकता हूं। और ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल होता तो कहता माशा अल्लाह, उसके अलावा किसी के पास कोई कुव्वत नहीं है। अगर तू ये देख रहा है कि मैं माल और औलाद के एतबार से तुझसे कमतर हूं, तो उम्मीदवार हूं कि मेरा परवरदिगार मुझे भी तेरे बागात से बेहतर बागात इनायत कर दे और उन बागात पर आसमान से ऐसी आफत नाजिल कर दे जो सबको खाक कर दे और चटियल मैदान बना दे, या उन बागात का पानी खुश्क हो जाए और तू उसके तलब करने पर भी कादिर ना हो, और फिर उसके बाग के फल आफत में घेर दिए गए तो वो उन अखराजात पर हाथ मलने लगा जो उसने बाग की तैयारी पर सर्फ किए थे, जबकि बाग अपनी शाखों से फल उल्टा पड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि ए काश मैं किसी को अपने परवरदिगार का शरीक ना बनाता। और अब उसके पास वो क्रोध भी नहीं था जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करता
और वो बदला भी नहीं ले सकता था। उस वक्त साबित हुआ कि कयामत की नुसरत सिर्फ खुदाए बरहक के लिए है। वही बेहतरीन सवाब देने वाला है और वही अंजाम बखैर करने वाला है। और इन्हें जिंदगानी दुनिया की मिसाल इस पानी की बताइए जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, तो जमीन की रोएदगी इससे मिल जुल गई, फिर आखिर में वो रेजा रेजा हो गई जिसे हवाएं उड़ा देती हैं। और अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। माल और औलाद जिंदगानी दुनिया की जीनत है और बाकी रह जाने वाली नेकियां परवरदिगार के नजदीक सवाब और उम्मीद दोनों के एतबार से बेहतर है। और कयामत का दिन वो होगा जब हम पहाड़ों को हरकत में लाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल खुला हुआ देखोगे और हम सबको इस तरह जमा करेंगे कि किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बस्ता पेश किए जाएंगे और इरशाद होगा कि तुम आज इसी तरह आए हो जिस तरह हमने पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम्हारा ख्याल था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादा गाह नहीं करार देंगे। और जब नामा आमाल सामने रखा जाएगा तो देखोगे कि मुजरिमीन इसके मंदरजात को देखकर खौफजदा होंगे और कहेंगे कि हाय अफसोस, इस किताब ने तो छोटा बड़ा कुछ नहीं छोड़ा है और सबको जमा कर लिया है और सब अपने अमाल को बिल्कुल हाजिर पाएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार किसी एक पर भी जुल्म नहीं करता है। और जब हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया कि वो जिन्नात में से था। फिर तो उसने हुक्म खुदा से सरताबी की, तो क्या तुम लोग मुझे छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को अपना सरपरस्त बना रहे हो, जबकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। ये तो जालिमीन के लिए बदतरीन बदल है। हमने इन शयातीन को न जमीन और आसमान की खिलकत का गवाह बनाया है और न खुद इन्हें इनकी खिलकत का, और न हम जालिमीन को अपना कुव्वत बाजू और मददगार बना सकते हैं। और उस दिन खुदा कहेगा कि मेरे उन शरीकों को बुलाओ जिनकी शिरकत का तुम्हें ख्याल था, और वो पुकारेंगे लेकिन वो लोग जवाब भी नहीं देंगे, और हमने तो इनके दरमियान हलाकत की मंजिल करार दे दी है। और मुजरिमीन जब जहन्नुम की आग को देखेंगे तो इन्हें ये ख्याल पैदा होगा कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं और उस वक्त उस आग से बचने की कोई राह न पा सकेंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के लिए सारी मिसालें उलट पुलट कर बयान कर दी हैं, और इंसान तो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है। और लोगों के लिए हिदायत के आ जाने के बाद कौन सी शय माने हो गई है कि ये ईमान न लाएं और अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार न करें, मगर ये कि इन तक भी अगले लोगों का तरीका आ जाए या इनके सामने से भी अजाब आ जाए। और हम तो रसूलों को सिर्फ बशारत देने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजते हैं, और कुफ्फार बातिल के जरिए झगड़ा करते हैं कि इसके जरिए हक को बर्बाद कर दें। और उन्होंने हमारी निशानियों को और जिस बात से डराए गए थे सबको एक मजाक बना लिया है। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे आयात इलाहिया की याद दिलाई जाए और फिर उससे एरास करे और अपने साबिका अमाल को भूल जाए। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि ये हक को समझ सके, और इनके कानों में बहरापन है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाएंगे भी तो ये हरगिज़ हिदायत हासिल ना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और साहिब रहमत है। वो अगर इनके अमाल का मुवाखजा कर लेता तो फौरन ही अजाब नासिल कर देता, लेकिन उसने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिस वक्त उसके अलावा ये कोई पनाह ना पाएंगे। ये वो बस्तियां हैं जिन्हें हमने उनके जुल्म की बिना पर हलाक कर दिया है और उनकी हलाकत का एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने जवान से कहा कि मैं चलने से बाज ना आऊंगा यहां तक कि 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर पहुंच जाऊं या यूं ही बरसों चलता रहूं। फिर जब दोनों मजमाउल बहरीन तक पहुंच गए तो अपनी मछली छोड़ गए और इसने समंदर में सुरंग बनाकर अपना रास्ता निकाल लिया। फिर जब दोनों मजमाउल बहरीन से आगे बढ़ गए तो मूसा ने अपने जवान साले से कहा कि अब हमारा खाना लाओ कि हमने इस सफर में बहुत तकान बर्दाश्त की है। इस जवान ने कहा कि क्या आपने ये देखा है कि जब हम पत्थर के पास ठहरे थे तो मैंने मछली वहीं छोड़ दी थी
और शैतान ने उसके जिक्र करने से भी गाफिल कर दिया था और उसने दरिया में अजीब तरह से रास्ता बना लिया था। मूसा ने कहा कि बस वही जगह है जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर दोनों निशाने कदम देखते हुए उल्टे पांव वापस हुए तो उस जगह पर हमारे बंदों में से एक ऐसे बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की थी और अपने इल्म खास में से एक खास इल्म की तालीम दी थी। मूसा ने उस बंदे से कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं कि आप मुझे इस इल्म में से कुछ तालीम करें जो रहनुमाई का इल्म आपको अता हुआ है। उस बंदे ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे और इस बात पर कैसे सब्र करेंगे जिसकी आपको इत्तला नहीं है। मूसा ने कहा कि आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की मुखालिफत ना करूंगा। उस बंदे ने कहा कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो बस किसी बात के बारे में उस वक्त तक सवाल ना करें जब तक मैं खुद उसका जिक्र ना शुरू कर दूं। बस दोनों चले, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो उस बंदे खुदा ने उसमें सुराख कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने इसलिए सुराख किया है कि सवारियों को डुबो दें? ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। उस बंदे खुदा ने कहा कि मैंने ना कहा था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि खैर, जो हद गुज़ाश्त हो गई उसका मुआखजा ना करें और मामलात में इतनी सख्ती से काम ना लें। फिर दोनों आगे बढ़े, यहां तक कि एक नौजवान नजर आया और उस बंदे खुदा ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाकीज़ा नफ्स को बगैर किसी नफ्स के कत्ल कर दिया है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मूसा ने कहा कि इसके बाद मैं किसी बात का सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें कि आप मेरी तरफ से मंजिल उज़्र तक पहुंच चुके हैं। फिर दोनों आगे चलते रहे, यहां तक कि एक करिया वालों तक पहुंचे और इनसे खाना तलब किया। इन लोगों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने एक दीवार देखी जो करीब था कि गिर पड़ती। बंदे साले ने इसे सीधा कर दिया तो मूसा ने कहा कि आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। बंदे साले ने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का मौका है। अनकरीब मैं तुम्हें इन तमाम बातों की तावील बता दूंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। ये कश्ती चंद मसाकीन की थी जो समंदर में बारबरदारी का काम करते थे। मैंने चाहा कि इसे ऐबदार बना दूं कि इनके पीछे एक बादशाह था जो हर कश्ती को ग़ज़्ब कर लिया करता था और ये बच्चा, इसके माँ बाप मोमिन थे और मुझे खौफ मालूम हुआ कि ये बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र की बिना पर इन पर सख्तियां करेगा। तो मैंने चाहा कि इनका परवरदिगार इन्हें इसके बदले ऐसा फर्जंद दे दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो और सिला रहम में भी। और ये दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और इसके नीचे इनका खजाना दफन था और इनका बाप एक नेक बंदा था। तो आपके परवरदिगार ने चाहा कि ये दोनों ताकत और तवानाई की उम्र तक पहुंच जाएं और अपने खजाने को निकाल लें। ये सब आपके परवरदिगार की रहमत है और मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। और ये इन बातों की ताबील है जिन पर आप सब्र नहीं कर सके हैं। और ए पैगंबर, ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं अनकरीब तुम्हारे सामने इनका तस्करा पढ़कर सुना दूंगा। हमने उनको जमीन में इख्तिदार दिया और हर शय का साजो सामान अता कर दिया। फिर उन्होंने इन वसाइल को इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वो गुरूब आफ्ताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक काली कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम को पाया। तो हमने कहा कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे इन पर अजाब करो या इनके दरमियान हुस्न सलूक की रविश इख्तियार करो। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जिसने जुल्म किया है इस पर बहरहाल अजाब करूंगा और यहां तक कि वो अपने रब की बारगाह में पलटाया जाएगा और वो उसे बदतरीन सजा देगा। और जिसने ईमान और अमल सालेह इख्तियार किया है उसके लिए बेहतरीन जजा है और मैं भी उससे अपने उमूर में आसानी के बारे में कहूंगा। इसके बाद उन्होंने दूसरे वसाइल का पीछा किया, यहां तक कि जब तुलुए आफ्ताब की मंजिल तक पहुंचे तो देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू कर रहा है जिसके लिए हमने आफ्ताब के सामने कोई पर्दा भी नहीं रखा था। ये है ज़ुल्करनैन की दास्तान और हमें उसकी मुकम्मल इत्तला है। उसके बाद उन्होंने फिर एक जरिए को इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो इनके करीब एक कौम को पाया जो कोई बात नहीं समझती थी। इन लोगों ने किसी तरह कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन पर फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आपके लिए अखराजात फराहम करें और आप हमारे और इनके दरमियान एक रुकावट करार दे दें। उन्होंने कहा कि जो ताकत मुझे मेरे परवरदिगार ने दी है वो तुम्हारे वसाइल से बेहतर है। अब तुम लोग कुव्वत से मेरी इमदाद करो
کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں. چند لوہے کی سلیں لے آؤ. یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر ڈھیر ہو گیا تو کہا کہ آگ پھونکو. یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو کہا آؤ اب اس پر تانبا پگھلا کر ڈال دیں، جس کے بعد نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ پروردگار کی ایک رحمت ہے. اس کے بعد جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ رب بہرحال برحق ہے، اور ہم نے انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، اور اس دن جہنم کو کافرین کے سامنے باقاعدہ پیش کیا جائے گا. وہ کافر جن کی نگاہیں ہمارے ذکر کی طرف سے پردے میں تھیں اور وہ کچھ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، تو کیا کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں گے؟ تو ہم نے جہنم کو کافرین کے لیے بطور منزل مہیا کر دیا ہے. پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں جو اپنے اعمال میں بدترین خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات پروردگار اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. ان کی جگہ ان کے کفر کی بنا پر جہنم ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیاتوں کو مذاق بنا لیا ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی منزل کے لیے جنت الفردوس ہے. وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور اس کی تبدیلی کی خواہش بھی نہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لیے سمندر بھی روشنی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے ان کی مدد کے لیے ہم ویسے ہی سمندر اور بھی لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے. صدق اللہ العظیم.